चलिए। Respected Director Sir, Principal Ma'am, STNC Sir, Manager Sir, and all colleagues. Today we have completed first session successfully. So after completing the first session, we are going to start second phase of this training. We already discussed in first phase what is competency building and what is multimedia. The real concept of competency building and real concept on multimedia we have already discussed in the first phase. Now in the second phase we are going to discuss in more details. So listen carefully, and to start second phase I would like to call STNC Roshan sir. Please come and continue the second phase. Come, Roshan sir. So, once again, good morning, all of you. I, Kumar Roshan, STNC, Mother Teresa Higher School, invites each and every one of you to the second session of the topic competency-based building programs in multimedia. So, as we all know that this program has taught us a lot more things, and this is the program of current generation and modern generation also. So this multimedia things not only enhances the people's learning skills, but it also helps us to modernize our further life skills also. So those are the things which could be understood and undermined according to the things, according to the work and according to the prescribed things. So as we all have seen, I have already said that our scientists are researching a lot about multimedia skills. So next, what we are looking is hypermedia and multimedia. Okay, so what is hypermedia and multimedia? A hypermedia text means to be read non-linearly by following links that point to other parts of the document or to other documents. Next one was hypermedia not constrained to be good, to be text-based, can include other media, graphics, images, and especially the continuous media, sound and video. The World Wide Web, the best example of the hypermedia application. Multimedia means that computer information can be represented through audio, graphic, image, video, and animation in addition to traditional media. Examples of typical present multimedia applications include digital video, editing, production systems, electronic newspaper, magazines, etc. World Wide Web, online reference works, example, encyclopedia, games, etc., home shopping, interactive TV, multimedia courses, and many other things. Okay, so these all things will help us to gain us a lot. So for this, now as we have discussed a lot many things, now I would like to call one of my colleagues to come and express some views about multimedia and show what he has gained or what till here his experience is about
multimedia. The various we have to know various concepts related to the multimedia. In present world, nothing is in competition with the multimedia world. Even from childhood, we are targeting various resources, and those resources are get from different sources which are unknown to us. But yet, we are fulfilling our desires for various means which incorporate with the various section of the media, which is jointly called as multimedia. Multimedia has different sections, and in the past decades, there was a growing concern about how the recent development in the scientific world will help in the multimedia to gain our resource development in kind of human resource. So multimedia gives us various opportunities like to gain over various different research and other things which are going on in the world, even far from our country. We can also use it for entertainment purpose, and nowadays most of the media, channel, apart from the TV channels and newspapers, are basically gaining their information from multimedia sources. Like whatever is happening in the world in the present scenario, we are getting from social media sites, from TV live broadcasting, or various other means. But they all compromise of a single fact, that it is a multimedia. Multimedia that doesn't means only the facts. It is a good representation of facts with images, with videos, and all those things which are required for getting clear understanding, a clear view of what is happening and what it has to do with us. Means what is has to give us benefits, what it has to clear our doubts. So in present scenario, even a small child, even from a kid, we are about to learn more about multimedia, though we are not getting about it in a deep sense, but we are always using it. In some sense or other, we are using multimedia for different purposes. And as a teacher, I am also using multimedia. I will always try to convey the students to get some detailed information about many topics which is not related even the books or the present syllabus, but they can get further information about that topic so that they can help them in later of life. Like a student who is going in science field, so if we are going to deep research, we want to know much more things about that. Apart from the syllabus and the studies, which is given to all as a general, he can take his part, give some time on the multimedia issues. And multimedia has various concerns in the project world. Like there are also some disinformation. Disinformation is supplied by various sources, but we have to just cut them down from the real source. So multimedia doesn't only gives us the opportunity to get all kinds of information, it also gives us the chance to put our views over all the world in various kinds of forms. Like in present scenario, all the news which are happening in the world are comprised of videos, and those lectures which are ongoing with those videos. And those people are always trying to convey what is happening. But we are as a single person, we can't have the reach to every source in the world. We can't have the reach to different sources of the world. So multimedia is there, acting as a vital source for supplying us the information about different topics. In present world, we can't even imagine about living without multimedia. It was the old days when we were just depending on the newspapers, televisions, and those also comprised only about information. But today what we can get from the information by our own will, by at the timing is prescribed, by the way we want, that the source which we believe ourselves to be authentic. Now it seems that various sources can be authentic, but what we believe ourselves to be authentic, having that source, we can get from that source by multimedia. So even today the students have different source to get from multimedia. They can describe the other students also, their friends, a group circle. Nowadays, even after Corona times, multimedia has got a vital importance. All the kinds of studies are now present on the various channels, which can also conclude not or really conclude, but which gives a pathway to reaching to those real videos and those real news information which are not available in our country also, like from Cambridge University and different kind of universities which are renowned IITs of India, IIMs of India, which are not allowing every single child to get a direct information.
particularly some pictures which are of major importance. Like in present day world, even the main focus is like nowadays the Ukraine-Russia scenario. The war is going on, but we have to get the information from very different sources. Apart from television and media channels like newspapers, we are getting them from different sources. Some sources are banned from other countries, some sources are banned from some other group of countries. But to get our view, what is really correct and what is really not correct, and what is important for us to know at a period time. Multimedia is going up a vast difference in the case that they divert the useless information from that particular kind of information which is important for us to know. So multimedia can not be defined in a single phrase or term, but it has just as its essence can be felt in every scene, every way, everywhere we are present. Nowadays people can't live without multimedia. So multimedia has various prospects. Whatever information is provided from authentic source, comprising of various fields which are related to science, information, politics, geopolitics, and even civical system, and what examinations are going on. All those kinds of information is now supplied to every small child living in the village or small town. Here the way to go forward in this scenario is every day. It is not defined by, it is not restricted or defined by the way of thinking or the way of thinking has ability to get the information. Every person living in a rural area is very far from the town area. He has also access to every kind of information because of this multimedia. So we are very deep gratitude to all the people which are included in the multimedia, which are helping the world move forward. And the multimedia is not only a particular term which can be said to be even a particular phase of one country. Every country has its own contribution towards multimedia. Mainly the Western world, we think that Western world must have a deep essence in getting all those new resources and all those new changes which is done with multimedia. Like US and Europe, they are trying to observe and control all the information about Ukraine and Russia war, which is not in the favor of Ukraine but in the favor of Russia. They are trying to portray Russia as the villain. So in this case also, for example, in this case also, if we have to get a real picture of what is happening in this real world, we have to get through different sources which are authentic and which are showing us the real videos, real time, on the real time, all the detailed descriptions. So this can be only possible with the multimedia. Thanks to all the people we are giving their time and their brain in learning all the kinds of various sorts of multimedia platforms. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, Kunal sir, once again for whatever information you have shared with us. So, multimedia things are not only built to be shaped according to the task, but it also enhances much dignity. Multimedia improves the skills, what we learn from the things, and multimedia tells us, or it just improves the educational quality, the things what you gain from this, and what things are achieved by us. And as we all have seen that multimedia classrooms are now being introduced in all the schools also. In many of the things, most of the teachers are using multimedia to teach their students, and in detail we have seen the use of multimedia, and we already know the use of those multimedia, but there is always a negative and positive impact of each and everything. And according to that also, multimedia also have some impacts. So those impacts could be easily learned or could easily be generated according to the viewpoint how we implement those things. And
explain the teacher, explain. So as time immortal, we are seeing how education system is being changed. Earlier, the students were allowed to just listen to the students. The student listen to the teachers. यानी एक दूसरी भाषा में कहें तो पहले श्रुति और स्मृति के का जमाना था। यानी उस जमाने में जो शिक्षक जो अपने बच्चों को बोल करके बताया करते थे, उसकी स्मृति को याद रख करके बच्चे अपने पाठ्यक्रम को याद रखते थे और उसको अपने जीवन में उतारते थे। फिर हमने देखा क्या कि उस श्रुति स्मृति से आगे निकलते हुए हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रिंट कल्चर के ऊपर आ गया है। यानी एक प्रिंट कल्चर भी हम लोग हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म साबित हुआ, जिसने पढ़ाई और शिक्षा के केंद्र को और ज्यादा आगे बढ़ाया। और आज जो है आप सोचिए कि वो एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें मल्टीमीडिया के आ जाने से, यानी करेक्ट फॉर्म में कहें तो ऑडियो वीडियो विजुअल्स वाले जो क्षेत्र में जो पढ़ाई की चीजें हैं, इनके आ जाने से आज शिक्षा का बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है। ठीक है, आज शिक्षा जो है वो बहुत हद तक बहुत दूर दूर तक फैल रही है। और शिक्षा क्या कर रही है, वो आज बच्चों को पढ़ने लिखने पढ़ाने का जो माध्यम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, और जो माध्यम है वो बढ़ता जा रहा है। और क्या हो रहा है कि बच्चे जो है वो और ज्यादा अच्छे तरह से पढ़ाई के प्रति अग्रसर हो रहा है। ठीक है, आपका और ज्यादा आगे बढ़ रहा है और अब पढ़ाई जो है वो उनके लिए ज्यादा सरल होता है। यानी इट इज बिकमिंग इजी, क्योंकि एक्चुअली आज के जमाने में प्रेशर, स्ट्रेस और भाग दौड़ को देखते हुए वी आर जस्ट ट्राइंग टू improve the quality of education, and multimedia has one of the basic role in those things. So further taking to the topic, I would like to call first Arun sir to come and show what his views are according to the media and impeach what he thinks media could attract, and hopefully you will also get to learn according to his understanding. So आइए अरुण सर को बुलाते हैं और देखते हैं कि उनकी समझ से क्या मल्टीमीडिया है और आप लोग सबको उनके व्यू से भी मल्टीमीडिया को समझने में आसानी होगी। ठीक है, सो once again I would like to call Arun sir. Arun sir, come. धन्यवाद कुमार रोशन सर, हमारे विद्यालय के एसटीयूसी। आज की जो महत्वपूर्ण जो विषय है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया है क्या? मल्टीमीडिया मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी प्लस मीडिया। मल्टी का मतलब होता है कई प्रकार और मीडिया का मतलब होता है सूचना। कई प्रकार की सूचनाओं को एकत्र करना ही मल्टीमीडिया कहलाता है। आज के समय में जैसा कि आप जानते होंगे, आज के दैनिक में कई प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया जाता है मनुष्य के जीवन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए, जिसमें हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे फेसबुक है, जैसे मैसेंजर है, और इन सभी को हमारे जीवन में नितांत जरूरी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इन सभी चीजों के बगैर आज की स्थिति में किसी भी कार्य को संपादित करना वह सर्वोत्तम रूप न रह गया जो पहले हुआ करता था। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा जीवन बहुत ही फास्ट जीवन है, यानी करीब बहुत ही तेज जीवन के चक्र में हम लोग चल रहे हैं। और इन सभी में जिस प्रकार की हम लोग एक शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा
महत्वपूर्ण है वह मुकाम को आप हासिल कर लेंगे जिसका हर लोग कामना करते हैं। मल्टीमीडिया का महत्व हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अब समाज वह सब कुछ है जो समय के साथ चलता है। आप जैसे देखते होंगे मल्टीमीडिया का महत्व व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का महत्व यह है कि आज छोटा से छोटा वस्तु हो या बड़ा से बड़ा वस्तु हो, सभी में मल्टीमीडिया का एक कोडिंग होता है जिसके तहत आप उसकी गुणवत्ता और उसकी प्रखरता को जांच कर सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात होती है कि मल्टीमीडिया व्यवसाय में क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरी बात है कि कौन सा चीज कौन सा चीज का रेट क्या चल रहा है, यह भी बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है आपके मल्टीमीडिया के माध्यम से। मल्टीमीडिया के माध्यम से आप यह जान पाते हैं कि कौन सा जो वस्तु है उसका कौन सा कीमत जो है वो हमारे देश में सरोकार है या नहीं है। दूसरी बात है कि मनोरंजन के क्षेत्र में, जैसा कि आप जानते होंगे कि आज मल्टीमीडिया का महत्व मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है। पहले के जमाने में जैसा कि शुरू में जानते होंगे कि सबसे प्रथम जो चलचित्र आया था वह सत्य हरिश्चंद्र के बारे में आया था, और उस समय चलचित्र का मतलब होता है कि उसमें आवाज नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, ग्राफिक का जमाना बढ़ते गया और उसके बाद आज के चलचित्र में देखिए क्या एनिमेशन है, क्या एक भाव है और कितनी ज्यादा वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारे शिक्षक मनोरंजन के माध्यम से हमारे शिक्षा के भाव को लोगों के सामने प्रेषित करने में। अब होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी जो मनोविरोध जो स्वरूप है वह उस मनोरंजन के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और मल्टीमीडिया इसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो मनोरंजन के क्षेत्र में जो मल्टीमीडिया का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, घर में भी मल्टीमीडिया का बहुत बड़ा महत्व। जैसे कि आप जानते होंगे कि घर के संसाधन में भी कौन सा संसाधन की क्या जरूरत होती है उसके बारे में से जानकारी गृहिणी मल्टीमीडिया के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। आपको मालूम होगा बहुत सारी ऐसी वस्तु है या घर के बहुत सारे आइटम्स है जिसको आप व्हाट्सएप या फेसबुक या अदर के माध्यम से आप उसकी परचेज कर सकते हैं या उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। तो यह मल्टीमीडिया का बहुत ही बड़ा मुख्य भूमिका है जो कि क्या किया, घर को घर से जोड़ दिया, घर को बाजार से जोड़ दिया और हर लोग के वस्तु स्थिति को लाया। अब है सार्वजनिक क्षेत्र में मल्टीमीडिया का बहुत बड़ा महत्व है। मल्टीमीडिया के माध्यम से आप किसी भी चीज को प्रेषित कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं मास मीडिया क्या है? मास मीडिया कैसे मीडिया? मास मीडिया कहते हैं कि किसी भी सूचना को बहुत सारे लोगों में प्रेषित करना ही मास मीडिया कहलाता है। आप जैसे कि जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे घटना घटित होता है जिसको आप पूरे समाज पूरे लोगों के बीच में प्रेषित करना चाहते हैं। तो मास मीडिया के माध्यम से आप उस चीजों को लोगों के सामने प्रेषित करते हैं और हर व्यक्ति अपनी उस विषय वस्तु के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू मास मीडिया के माध्यम से रखता है। जैसे कि आप जानते होंगे न्यूज पेपर में हर व्यक्ति अपने वक्तव्य या अपने भाव को रखने का प्रयास करता है और ऐसा नहीं, हर व्यक्ति का अलग अलग भाव होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग सोच होता है और अपनी सोच को रखते हैं। जैसा हमारा संविधान करता है कि हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का अधिकार है। तो मास मीडिया के माध्यम से हम अपने विचारों को सभी के सामने रख सकते हैं और अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रेषित भी कर सकते हैं। यह मास मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। अब है मल्टीमीडिया घटक। मल्टीमीडिया का घटक जो होता है वह टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेजिंग, ग्राफिक है, एनिमेशन है। टेक्स्ट में क्या होता है कि मान लिया किसी भी वस्तु स्थिति है उसके बारे में सही जानकारी
वीडियो, आर्ट, ऑडियो और एनिमेशन में। अब आता है उपयोग। मल्टीमीडिया का क्या उपयोग है? मल्टीमीडिया का उपयोग एजुकेशन में है। मैंने पहले बताया कि एजुकेशन में यदि किसी विषय वस्तु को आप किसी बच्चों के सामने प्रेषित करना चाहते हैं, आप जैसे आप हमारे विद्यालय में जो चलता है उसमें मैंने पहले बताया कि स्कैनर सिस्टम होता है। उस स्कैनर सिस्टम के माध्यम से विद्यार्थी यदि स्कैन करे, प्रत्येक चीज को स्कैन करे तो उसको सही ढंग से अपने मोबाइल पर या अपने घर में देख सकता है कि क्या क्या हो सकता है। इसका एंटरटेनमेंट हो गया, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। इसके बाद होता है, इसके बाद जो है जो मुख्यतः मल्टीमीडिया जो है हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन घटनाओं घटक पर आगे अपने वक्तव्य रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यालय के आदरणीय दीपक सर आए और अपने वक्तव्य को रखें। दीपक सर प्लीज। First of all, good morning to all of you. Myself Deepak Kumar, faculty of Mother Teresa Campus English School. First of all, I would like to thank Kumar Roshan sir that he given me the opportunity to tell something about the competency-based program on multimedia. Competency-based education, that short form is CBE, has initiated a strong interest among the educators and the education stakeholders due to its potential to meet a student where they are in their educational journey and provide a more personalized path to completion. A typical competency-based education program has a curricular structure to demonstrate learning in clearly articulated competencies is how is agnostic as to the source of learning while maintaining clear and transparent learning standard, and has an emphasis on authentic assessment which evaluate what the learner knows and can do through real life demonstration and projects. Unfortunately, the model's practical benefits are tempered by the significant technologies, challenges and barriers to competency-based education program adaptation and roadblocks due to limits in higher education software products. As a community, the product used to manage our institutions and their teaching and learning processes are all deeply rooted in a credit hour based and course-based education delivery model. Competency-based education is not a new idea, but it promises a potential solution to critical issues in higher education. Like that, नॉर्मली मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं। पहले के समय में स्टूडेंट जितना कुछ स्टडी नहीं कर पाते थे, आज के समय में वो फ्री में बहुत सारे कुछ स्टडी कर पाते हैं। और मल्टीमीडिया के आने से जो एजुकेशन सिस्टम में सुधार आया है, जो एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट आया है, इसके आगे से स्टूडेंट लोग जितना सीखना स्टार्ट किया है बाय द हेल्प ऑफ 3D एनिमेशन, बाय द हेल्प ऑफ वीडियोज, दे ऑल लर्न वेरी मच थिंग। लाइक यूट्यूब से आज के बच्चे बहुत सारी चीज़ों का तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके आसानी से पढ़ के और बड़े से बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, लाइक UPSC, IIT, SSC, NTA एंड मेनी मोर एग्जाम्स। सो पहले के समय में जो ऑफलाइन स्टडी सिर्फ एक हुआ करता था, जो स्टूडेंट सिर्फ डिपेंडेंट होते थे ओनली ऑफलाइन स्टडी पे, मल्टीमीडिया के आने से स्टूडेंट का डिपेंडेंसी खत्म हुआ और वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस काबिल बनाने लगे कि अगर टीचर्स अगर वो ऑफलाइन स्टडी ना भी करते हैं तो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब पर इतने सारे फैकल्टीज मौजूद है, इतने सारे हायर एजुकेटेड फैकल्टीज मौजूद है जो बच्चों को बहुत कम पैसे में बहुत सारी चीज़ों को सिखाते हैं। अभी मैं दो इंसान का नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल खान सर का है, जो सबसे कम पैसा में स्टूडेंट को रेलवे, बैंकिंग, SSC और BPSC इन सारी चीज़ों का तैयारी करवाते हैं। और दूसरे हमारे यंग जनरेशन के हीरो उनको का सिंगर दैट अलग पांडे सर, जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया में आग लगा कर रख दिया यूट्यूब से। तो ये दो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने स्टडी को ऑनलाइन स्टडी से बच्चों
सबसे फर्क है, बच्चे लोग एसपी बने, डीएसपी बने, बहुत सारे बच्चे आईआईटी निकाले, मेडिकल क्रैक किए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मल्टीमीडिया जो हमारा है वो मल्टीमीडिया का हमारे आना हमारे स्टूडेंट के लाइफ में आने कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा बात है। और मल्टीमीडिया का आना स्टूडेंट के लिए दो फायदा है, एक उनको हायर एजुकेशन बहुत अच्छे फैकल्टी से मिल पा रहा है, और दूसरा बहुत कम पैसे में स्टडी करके वो अपने लाइफ में सक्सेस अचीव कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर हम बात करें ऑफलाइन स्टडीज का तो कोचिंग का चार्जेज इतना ज़्यादा होता है, और अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन स्टडी का उस टाइम में कोचिंग का चार्जेस बहुत कम होता है। तो मल्टीमीडिया के हेल्प से बच्चे लोग, गरीब बच्चे लोग भी इजीली सब्सक्रिप्शन ले पाते हैं और अपने लाइफ को सक्सेस बना पाते हैं चीज़ों को स्टडी करके। सो आई वुड लाइक टू थैंक रोशन सर दैट ही called me and I say many more things about the multimedia. So please Roshan sir come. Thank you Arun sir, thank you Deepak sir for whatever you do sir. तो आपका जो भी व्यूज रहा वो एक बहुत हद तक सिखाने वाला है। आपके व्यूज से हो सकता है बहुत लोगों का मन जो है वो बहुत हद तक प्रभावित हुआ हो, तो उम्मीद करता हूँ। और एज वी ऑल आर सीइंग मल्टीमीडिया का कितना बड़ा रोल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ना सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में बल्कि अगर देखा जाए तो मल्टीमीडिया का रोल जो है वो ये हमारे जीवन के हर फॉर्म को एक्सेप्ट करता जा रहा है, या फिर कह सकते हो कि हमारे हर फॉर्म में मल्टीमीडिया जो है ऐड होता जा रहा है। अगर हम शुरू से बात करें, जब से हमारा लाइफ स्टार्ट हो रहा है तो एजुकेशन सिस्टम से लेकर के, ठीक है, आप सोचिए आपके वर्किंग आज के डेट में मोस्ट ऑफ द काम या मोस्ट ऑफ द वर्क हम कर रहे हैं वो सभी क्या है आपका लैपटॉप पे हो रहा है। आज के डेट में हर कुछ जो है डिजिटलाइज हो चुका है, ठीक है, और सारा आपका एजुकेशन से लेके पेमेंट सेक्शन से लेकर के आपकी टिकट बुकिंग से लेकर के आप आज के डेट में आप टिकट बुक करने आते हो तो आप आईआरसीटी साइट्स के ऊपर जाते हो, ठीक है, तो वहां भी आप ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, आप ऑनलाइन मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप आज के डेट में बहुत लोग जो है आजकल बैंक्स वगैरह जो है वो एसबीआई के बैंक्स को भी लोग जो है वो घर पे बैठे बैठे भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। आज के डेट में हम देख रहे हैं कि पहले के डेट में जो एक समय के बाद जो बहुत सारे लोग जब रिटायर होते थे तो वो अपना पेंशन लेने या किसी और काम की वजह से उनको बैंक जाना पड़ता था, ठीक है, जिसकी वजह से उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और आज जो है बैंक जो है खुद उनके घर पे अवेलेबल है, जो नहीं है उनके तो बैंक में तो है ही, लेकिन साथ साथ क्या है आज के डेट में आपके घर पे बैंक है, आप घर पे बैठे बैठे अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, निकाल सकते हो या कोई चीज खरीद सकते हो। तो दिस इज ऑल पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मल्टीमीडिया। ये सब मल्टीमीडिया की वजह से हुआ है, ठीक है। कल अभी हाल की बात है, रिसेंट में मैंने एक न्यूज देखा, उस न्यूज में मैंने देखा कि साउथ के एक रूरल एरियाज में एक विमेन जो है वो अपने पेंशन को लेने के लिए नंगे पैर चेयर के सहारे जा रही थी। अभी हाल में मैंने मीडिया में एक रिपोर्ट देखी, एक न्यूज देखा, जहां पर मैंने देखा कि एक ओल्ड लेडी, एक बुजुर्ग महिला जो है वो अपने पेंशन को लेने के लिए चेयर के सहारे नंगे पैर जो है वो बैंक जा रही थी। तो आप सोच सकते हो कि एक एज के बाद, एक समय के बाद हर किसी को सहारे की जरूरत होती है। हर इंसान जो है वो उसके लिए समय जो है वो एक साथ ही रहता है। समय के हिसाब से आपको अपने शरीर को, अपने वक्त को, अपने आपके हालात जो बदलते हैं। तो निर्मला सीतारमण ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए, ठीक है, यानी इन चीजों के ऊपर ध्यान देते हुए गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने निर्मला सीतारमण एक्ट के लिए एक्शन लिया और गवर्नमेंट को एसबीआई को डायरेक्ट रिकमेंडेशन किया कि उसके लिए बैंक्स जो है या जो बैंक कर्मी है उसके घर पे एक्ट करे, उनके लिए काम करे, या मीडिया के थ्रू तो बैंक कैसे काम करेगी। तो बेसिकली क्या है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, इसके माध्यम से पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी सुविधाएं हैं जहां अब इंसान को एट अ पॉइंट हर जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस जगह पे, उस समय पे आपको ये मीडिया या मल्टीमीडिया
के बहुत अच्छे से अवगत हुआ और इसके संबंध में कुछ विशेष बातें मैं बताना चाहूँगा कि मल्टीमीडिया के अंतर्गत योग्यता पर आधारित शिक्षा के अंतर्गत अनेक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं भी होती है। इसमें पहला पॉइंट है सभी छात्रों के लिए समानता होना अति आवश्यक है। सीबीएसई के अंतर्गत इनके दृष्टिकोण से इनके उद्देश्य विशेष दक्षताओं के दर्शाने पर या केंद्रित करके सभी छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि या पूर्व ज्ञान की परिपक्वता पर बिना प्रदर्शन किए उसे अवगत कराया जाना अति आवश्यक है, ताकि सभी छात्र एक समान अपना शिक्षा हासिल करने में आगे विकास की ओर बढ़े। दूसरा है विभेद समर्थन। सीबीएसई दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक छात्र की व्यवस्था सीखने की जरूरत के आधार पर अलग अलग समर्थन प्रदान करता है, अलग अलग व्यवस्था करता है। जिस कैटेगरी के छात्र होते हैं उसी के अंतर्गत उन्हें शिक्षा दी जाती है, जिससे उन्हें अपनी गति के काम करने में उनके क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है जहाँ उन्हें सबसे अधिक सुधार की आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रवीणता के साक्ष्य के आधार पर प्रगति करना। सीबीएसई के अंतर्गत दृष्टिकोण प्रवीणता के साक्ष्य के आधार पर प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है, बजाय कक्षा में बिताए योग्यता में दक्षता का प्रदर्शन किया है और नई सामग्री पर जाने की अनुमति देता है। नई दिशा की ओर कैसे अवगत कर आगे विकास करें। नेक्स्ट है इसकी रचनात्मक मूल्यांकन। सीबीएसई दृष्टिकोण से छात्रों को निरंतर प्रक्रिया प्रदान करने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन की विशेष रूप से सहकर्मी और स्वमूल्यांकन का उपयोग करता है, जिससे उन्हें अपने स्वयं के काम पर प्रतिबंधित करने और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति देती है। तो मैं अपना विचार यहीं समाप्त करता हूँ। अब मुझे रोशन सर से आग्रह है कि अपनी उस विशेष इस पर चर्चा करें। Okay, so thank you Dharmesh sir, whatever you have explained about this topic। और हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये टॉपिक जो है हमारे लाइफ में इंटर करता है, कैसे हमारे लाइफ को आसान बना रहा है, ठीक है। और ये सब चीजें हमारे लाइफ के लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखती हैं ये भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो फर्दर अगर इसके बारे में और बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे लाइफ में कितना हद तक एंटर कर चुका है ये हम खुद भी नहीं जानते हैं, और बस इसको जरूरत है समझने की, जानने की, इसके यूजेस को पहचानने की, ठीक है। और जब हम इन सब चीजों को देखेंगे तो हम लाइफ में ऑटोमेटिक क्या है आगे बढ़ सकते हैं, बहुत चीजों को कैप्चर कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड बी प्रेजेंट ओवर एंड गेट अ लॉट फ्रॉम दिस टॉपिक। सो एक बार आप सबका